Hello students, wish you all a very good morning. Today in this class, we are going to read the English of class 7 and we were on lesson number 8, that is the Olympic champions. So we have discussed, हमने discuss किया था, we have discussed till the sixth part of this exercise, that was let's write, and in this let's write what you have to do, you have to write the question answers and a letter also. I thought you all have done this now. Now today we will talk about the seventh part of the exercise, that is let's do. Okay, I am reading the instruction. आज की इस क्लास में हम सेवेंथ पार्ट से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और सेवेंथ पार्ट है आपका लेट्स डू, आओ करें. तो इसकी जो हेडिंग है, जो इंस्ट्रक्शन है, मैं उसको पढ़ने जा रही हूँ. लिसन इट वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में मैसेज करना है. ओके फाइन. सो हियर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है. हियर आर सम न्यूज आइटम्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. यहाँ पर कुछ न्यूज आइटम्स है, समाचार के आइटम्स दिए हुए हैं एक न्यूज़पेपर से. बोथ द हेडिंग एंड द न्यूज आइटम्स आर जम्बल्ड. ठीक है, हेडिंग और उसके अंदर का जो मैटर है वो जम्बल किया हुआ है. ओके, रीड ऑल द न्यूज आइटम्स. आपको उन सभी न्यूज आइटम्स को पढ़ना है केयरफुली फ्रॉम 1 to 4. फर्स्ट से लेके 4 तक जो भी आपके न्यूज आइटम्स लिखे हुए हैं नंबरिंग के थ्रू आपको उनको क्या करना है, पढ़ना है बहुत ही ध्यानपूर्वक और उनकी हेडिंग से मैच करना है. ठीक है, विद द न्यूज आइटम्स एंड राइट देम इन द टेबल गिवन एट द एंड. ओके, सो आई थिंक दैट यू ऑल कैन डू दिस पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. आप सभी एक्सरसाइज के पार्ट को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है. फिर भी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ और आप सभी इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली सुनिएगा. कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. ओके, आई डोंट वांट कि आप लोग को कुछ भी नहीं बने. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, a permanent and a continuous Lok Adalat would be held on the premises of the Bhopal District Court of January 30 under the guidance of District Judge Dr. P.S. Chauhan, who is also the chairman of District Legal Service Authority. Okay, next, the speciality of the Adalat this time is that for the first time, two separate benches would hear cases pertaining to dishonoring of checks as also pre-litigation matters. At the Lok Adalat, cases of domestic disputes, civil and criminal cases would also be heard. The pre-litigation cases are heard in the court and efforts are made to settle them without the case going actually to normal court under a new rule. Any pending or prospective cases between two or more persons and the cases pertaining to the services provided by central and state governments can be heard in the Lok Adalat under the pre-litigation or clauses. Okay, the two separate benches for the check dishonor cases would be heard by Additional Chief Judicial Magistrate Rashmi Agrawal and Judicial Magistrate Dinesh Kumar Dangi as presiding officers, STC Bhopal. Okay, तो आई थिंक सो कि ये किस बारे में, इट्स अबाउट दी लोक अदालत. तो जो आपका यहाँ पर टॉपिक होगा दैट विल बी लोक अदालत. ओके, इट्स अबाउट लोक अदालत. तो आप फर्स्ट के सामने में नंबरिंग कर लीजिए. तो फर्स्ट है दैट इज योर लोक अदालत. आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट, आप लोग की बुक में ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, the Indian team of Ajitesh Pandhu, Gaganjeet Bhullar, Himmat Rai and Anirban Lahiri won their qualifiers in Malaysia on Thursday to take India to World Junior Team Golf Finals. The final is later this year. Okay, so I think so it is about what? ये किस बारे में बच्चों? ये है आपका गोल्फ से रिलेटेड है. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड में दैट, इसका ऑप्शन नंबर 8 है और इसमें ऑप्शन में क्या लिखना है आपको, इंडियन लेक जूनियर गोल्फ फाइनल. ओके, नेक्स्ट जो आपका इसी पे लिखा हुआ है, व्हाट इज दैट, द थर्ड पैराग्राफ, द थर्ड आइटम,
The state cabinet on a Thursday gave its approval to the governor's address to be presented during the forthcoming assembly session. Chief Minister Babulal Gaur chaired the meeting. During the meeting, the cabinet discussed at length achievements of state government, particularly in road, power, education, and health sectors. He also asked the ministers about prospects of BJP-supported candidates in Panchayat election. After the meeting, the CM also took a meeting on Simhaspa and directed the officials to make pending payment of Simhaspa when officials of Finance Department expressed their inability to make these payments in bulk. The Chief Minister directed them to prepare a time-bound program for clearing the dues. तो ये किस बारे में बच्चों? ये किस बारे में है? It is about MP. ये जो है आपका ऑप्शन, इसमें क्या आएगा आपका? That MP tablet seals kids. I think so. It's about the kids. Here some option is missing in your book. तो बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा, it's about the cabinet approved governor's address. Okay? ये क्या हो जाना है इसमें? जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी हमने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं लिखा ना बेटा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जो आपका थर्ड ऑप्शन है कैबिनेट डिस्कस गवर्नमेंट फर्दर। नेक्स्ट इसमें बच्चों जो आपको करना है, जो फोर्थ ऑप्शन जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें क्या करना है इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश टेबली इन रिपब्लिक डे फंक्शन in New Delhi was a major attraction, especially for the children, due to presence of famous characters Mowgli, the hero of Rudyard Kipling's The Jungle Book. The tablet based on this classic work stood in the row of tablets of state for its theme and attractive presentation. As the tablet depicting Mowgli and his playmates, including Bagheera, Sher Khan, Balu, etc., passed through the Rajpath, the children could not contain their thrills and excitement and gave a standing ovation. Okay, तो यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन आएगा that will be your MP tablet thrills kids. Okay, तो इसका भी हेडिंग आप लोग को लिखना है। So it is all in this paragraph, in this exercise. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की, that is our B part. बी पार्ट में देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग का एक हेडिंग लिखा हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिकॉशंस। व्हाट इज गिवन हियर? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिकॉशंस। ओके, तो देखते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिकॉशंस में क्या लिखा हुआ है। लेट्स बिगिन। वन डे अदिति's father Mr. Prasad, whose daughter goes to her school. एक दिन अदिति के पिता मिस्टर प्रसाद जो कि एक डॉक्टर है, अदिति के स्कूल जाते हैं। Aditi and some of her friends are sitting under a tree in the school garden. Aditi और उसकी कुछ दोस्त पेड़ के नीचे स्कूल में बैठी हुई हैं। They asked him a few questions on using fruits and vegetables safely. तो अदिति की जो फ्रेंड्स थी जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मिस्टर प्रसाद जो कि एक डॉक्टर है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। किस पर डिपेंड थे, किस पर बेसिस पे वो क्वेश्चंस आधारित थे? फलों और सब्जियों की सुरक्षा पर। ओके, He agrees happily. तो जो मिस्टर प्रसाद थे वो बहुत ही खुशी खुशी उन्होंने इस बात की सहमति दे दी कि ठीक है आप लोग पूछिए, मैं आंसर करूंगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पर एक डिस्कशन पढ़ना है। एक यहाँ पर क्या है, वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है बिटवीन हुम, मिस्टर प्रसाद और अदिति की दोस्तों के बीच की। स्टार्ट करते हैं। निधि, यहाँ पर जो फर्स्ट नेम आया है दैट इज निधि। शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग देम? निधि पूछती है क्या हमें फलों और सब्जियों को उपयोग करने से पहले धुलना चाहिए? तो इस पर मिस्टर प्रसाद बोलते हैं यस, दे मे हैव एग्स एंड लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स ऑन देम। बिल्कुल हाँ, उन्हें धुलना चाहिए। उनमें फलों और सब्जियों में क्या हो सकते हैं? अंडे,
और लार्वे, जो इंसेक्ट के बेबीज होते हैं उनको लार्वा बोलते हैं, वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड उन पर लगा हुआ हो सकता है। इसलिए हमें फलों और सब्जियों को धोने के बाद में ही प्रयोग करना चाहिए। ओके, देन राखी पूछती है, कैन वी कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड यूज देम लेटर? क्या हम फल और सब्जियों को पहले काट के रख लें और उसको बाद में हम प्रयोग कर सकते हैं? तो इस पर जो डॉक्टर प्रसाद है वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर प्रसाद यहाँ पर कहते हैं, cut fruits like apple and vegetables only when you want to use them, otherwise they may get infected. तो यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद ने बताया है राखी को कि जब हमें खाना है, जब हमें फल या सब्जियों का प्रयोग करना है, जैसे कि जो सेब है और जो अन्य सब्जियां हैं, हमें उनको तभी काटना चाहिए जब हम उनको उपयोग करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए तैयार हों। ठीक है, अगर हम उसको पहले से काट के रख लेते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो सकती है। ठीक है, उनमें इन्फेक्शन आ सकता है। देन इसके बाद में नेहा पूछती है, राधा ईट एप्पल आफ्टर रिमूविंग इट पील टू, इज इट द राइट वे? जो राधा है वो सेब के छिलके को हटा करके उसको खाती है, क्या ये सही तरीका है? तो इस पर डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, some fruits and vegetables have vitamins in their peel, so it's better she shouldn't eat apples this way. इस पर डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि कुछ फलों और सब्जियों के छिलके में विटामिन होते हैं। ओके, इसलिए ये बेहतर होगा कि वह, यानी कि कौन, राधा, ऐसे करके ऐसे एप्पल्स को छील करके नहीं खाए। ओके, देन नेक्स्ट कहा गया है, राधा ने पूछा है, माई ग्रैंड मदर सेज दैट वेजिटेबल्स शुडंट बी ओवरकुक्ड। मेरी दादी माँ कहती हैं कि सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। ओवर कुक यानी कि ज्यादा। ठीक है, जितना एक नॉर्मल कुकिंग होती है और एक ओवर कुकिंग होती है, तो सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर प्रसाद ने इस पर रिप्लाई किया, she says so because over cooking spoils vitamins and other nutrition of the vegetables. तो डॉक्टर प्रसाद कहते हैं, राधा को बताते हैं कि दादी माँ ऐसा इसलिए कहती है, वह इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि ओवर कुकिंग से, ज्यादा पका देने से जो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो विटामिन और पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं सब्जियों में, वो नष्ट हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। गर्ल्स कहती हैं, जो अदिति की दोस्त थी, वो सभी कहती है, थैंक यू अंकल, धन्यवाद अंकल। डॉक्टर प्रसाद, यू आर वेलकम चिल्ड्रेन, आप सभी का स्वागत है बच्चों। डू रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग फ्रूट्स एंड कटिंग वेजिटेबल्स। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्या करें, फलों को खाएं और सब्जियों को काटें, उसके पहले अपने हाथ को अच्छे से आप धुल लें। ठीक है, बिफोर, जब इसके पहले कि आप फल को या सब्जी को टच करते हो, उसके पहले अपने हाथ को आपको साफ कर लेना चाहिए और उनको बिना काटे, बिना छीले उनको वॉश भी कर लेना चाहिए। ठीक है, धुल करके, और उसके बाद में उसको कट करके साफ सुथरे हाथों से खाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हमें इनके आंसर्स को करना है। तो लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आर यू गाइस रेडी? समीर, हेलो समीर, वेयर आर यू? बेटा लिखना है। ओके, स्टार्ट राइटिंग। ओके, हमने यहाँ पे हेडिंग कर लिया है, 7 का बी पार्ट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिकॉशंस। ओके, फलों और सब्जियों की प्रिकॉशंस जो होती है, सावधानियां जो होती हैं, ये उस टॉपिक पर है। इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, व्हाट डिड निधि एंड हर फ्रेंड्स आस्क डॉक्टर प्रसाद। ओके, निधि और उसके दोस्तों ने डॉक्टर प्रसाद से क्या पूछा। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों आंसर नंबर फर्स्ट है, निधि and her friends asked Dr. Prasad about fruits
and vegetables precautions. ओके, निधि और उसके फ्रेंड्स ने डॉक्टर प्रसाद से फलों और सब्जियों के की सावधानियों के बारे में पूछा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी में है. सेकेंड क्वेश्चन. The second question is, why should we not keep fruits after cutting them? हमें फलों और हमें फ्रूट्स को कट करने के बाद में क्यों नहीं रखना चाहिए? ओके, तो इसका आंसर लिख लीजिए. That we should not keep fruit after cutting them because it may get infected. ओके, हमें फ्रूट्स को कट करने के बाद नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज, व्हाई डू वी वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग? ओके, इसका आंसर लिखना है हमें. थर्ड आंसर. तो इसका आंसर है बच्चों, वी शुड, इट्स अबाउट वॉशिंग. ओके, यहाँ पर है. हाँ, we should wash the fruit and vegetables before using because they, write it beta fast, okay, so we should wash the fruits and vegetables before using them, because okay, just wait, using, sorry, यहाँ पर एक मिस्टेक मिला, because before using them because they may contain they may have eggs and larvae of insects or the pesticides. It is the answer number third. ये है आंसर नंबर थर्ड. आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा. राइट, देयर इज नो क्वेश्चन. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई शुड वी नॉट पील दी फ्रूट, व्हाई शुड वी नॉट पील दी फ्रूट, हमें फलों को क्यों नहीं छीलना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों, लिख लेंगे बच्चों। चलो ठीक है बेटा इन्हीं की क्वेरी, किसी कोई क्वेरी है क्या? जस्ट म्यूट योरसेल्फ बच्चों। ओके, स्टार्ट राइटिंग। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है? वी शुड नॉट peel the fruit because we should not peel the fruit because some fruits have vitamins in their peels, right? तो ये हो गया आपके आंसर नंबर 4। ओके, नाउ इट्स कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज ओवर कुकिंग हार्म अवर फूड, ओवर कुकिंग हमारे भोजन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो इस आंसर को भी हम कर लेंगे। आंसर नंबर 5 है ओवर कुकिंग harms our food because it spoils, या यहाँ पर कर सकते हैं ओवर कुकिंग spoils, because over cooking spoils vitamins and other nutrients, nutrients है सॉरी यहाँ पर nutrients of the vegetable, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। तो बच्चों इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट आंसर था कि निधि और उसके दोस्तों ने डॉक्टर से क्या पूछा, तो निधि और उसके दोस्तों ने डॉक्टर से ये पूछा कि फलों और सब्जियों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद में व्हाई शुड नॉट वी कीप फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम, हमें फलों को काट कर ही क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम फलों को काट कर रखेंगे तो इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि बिकॉज ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इनमें इन्फेक्शन आ सकता है क्योंकि एयर में छोटे छोटे माइक्रोब और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, सरफेस पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू वी वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम, तो हमें फलों को यूज करने से पहले इसलिए धोना चाहिए क्योंकि उसमें इंसेक्ट के जो बच्चे होते हैं या फिर जो अंडे होते हैं इंसेक्ट के या फिर पेस्टिसाइड उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हमें फलों को प्रयोग करने से पहले साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट पील द फ्रूट, हमें फलों को क्यों नहीं छीलना चाहिए, तो हमें फलों को इसलिए नहीं छीलना चाहिए क्योंकि फलों के छिलकों में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ओवर कुकिंग हार्म अवर फूड, ओवर कुकिंग हमारे खाने को, हमारे भोजन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो ओवर कुकिंग करने से बेटा सब्जियां जो होती हैं, ओवर कुकिंग करने से सब्जियों का जो
न्यूट्रिशन होता है और जो विटामिन होता है वो क्या होता है, वो स्पॉइल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आज की ये क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक सो कि आप सभी ने कर लिया है। ओके बेटा, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। और आज का आपका होमवर्क ये है कि आज आपको जो भी लिखवाया गया है आप उसको गुड हैंड राइटिंग से अपनी फेयर नोटबुक में लिख लें और उसके साथ साथ उसको याद कर लें। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में जो बातें हैं, जो सावधानियां हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, आप उन सभी को फॉलो अप करें। करेंगे ना बच्चों सभी? ओके, तो आप सभी को उसको फॉलो अप करना है और होमवर्क भी हो गया आपका और आपका ये चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है। तो इसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड। किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ओके बेटा, ओके ओके बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर एंड बाय बाय।